Hello guys and welcome back to my YouTube channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. Today this is not any strategy video, this is not about the short notes or any of the advices जो मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ. दिस इज़ द Q&A सेशन जो मैंने एक दिन पहले अपने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी एंड कम्युनिटी पोस्ट भी यूट्यूब पे डाला था. एंड आप सबकी इतने सारे यूनिक क्वेश्चंस के बाद आई एम रेडी टू आंसर ऑल ऑफ देम. जिन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी उनको मैंने एक दो क्वेश्चन ही पिकअप किए हैं एंड आई लिटरली गॉट so many questions and so many unique questions that I am literally afraid to answer them. But yeah, let's get started. चाहे आपको नीट के बारे में डाउट हो या मेरे बारे में कुछ भी आपको पूछना हो, फॉर माई मार्क्स, माई टोटल अटेम्प्ट्स, हाउ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड यू नीडेड एनी पर्सनल एडवाइस, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं. सो येस, आई एम रेडी टू आंसर ऑल ऑफ देम. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अटेम्प्ट्स हैव यू टेकन टू क्लियर नीट? So I have basically taken 2 attempts to clear my NEET exam. The first attempt I gave in 2020 where I scored 510 marks and failed to get any government college for MBBS. Then I gave my second attempt in 2021 where I successfully grabbed a government college for MBBS and I scored 639 marks. So 2 attempts to clear my NEET exam. So the next question is how many percentage you got in 10th standard? So I got the percentage of 86 standard. I got the percentage of 86% in my 10th standard and nearly same in my 12th standard also, 88%. So yeah, 86% in my 10th standard. Your age, I am 19-year-old so far. I'll be 20 this year but not yet. So currently I am 19 years old. Okay, a fun question. How did your parents, relative, friends react to your NEET score and what fun things you did after you were assured of good score, that is after matching the answer key? Personally, if I tell about my own self, so I wasn't so much satisfied with my NEET marks because मेरे आकाश के टेस्ट सीरीज़ में 650 प्लस आते थे, जैसा मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था. So for me 639 was like an okay score. I was happy but I was not like so happy. Although my parents were really happy from my score and कि अब finally मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा. My all the friends जो रिपीटर ईयर में मेरे साथ थे या जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उन सब का ही मेरे पास they all congratulated me. And after giving my NEET, I did all those things जो personally मुझे बहुत watch web series and movies which was like missing from my life from past 2 to 3 years, and a few moments later, all those things which I really love. So traveling and all that which I was missing from 3 years. So yeah, I did all this after my NEET. Your date of birth, this I'll be revealing only when you are giving me assurance that आप मुझे gift दोगे. So my date of birth is 17th of October. What will success look for you? For me, the definition of success is being confident. Whenever I achieve any small thing in my life, whether it's any exam marks or any new thing that I learned from the life, I become more confident in my life. I get the confidence of experimenting with my life, trying new things and just be what I am. So yeah, for me success is equal to confident. Studying late night is good or morning? I think it completely depends upon you. Universally कहीं बुक में ऐसा नहीं लिखा कि रात को पढ़ना बुरा है या सुबह उठ के पढ़ना ही अच्छा है. It completely depends how your body accepts. There are some people जो पूरी रात पढ़ लेते हैं and दिन भर से सोते हैं. Their body accept that and they are very able to easily study. And there are some people जो accept नहीं कर पाते इस चीज़ को. तो आपकी बॉडी और आपका मन कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, मोर एफिशिएंटली, मोर क्वालिटी वाइज, नॉट क्वांटिटी वाइज. आप वो टाइम प्रेफर करिए, किसी का कॉपी ना करिए और किसी की एडवाइस सुन के अपने शेड्यूल को डिस्ट्रॉय मत करिए. आपकी बॉडी अगर रात को पढ़ना एक्सेप्ट करती है तो डू दैट. अगर वो सुबह पढ़ना एक्सेप्ट करती है तो डू दैट. वॉट एवर योर बॉडी एक्सेप्ट, नॉट एनी वन एल्स. How's your life changed after selection? A lot. I never ever thought that after the selection these many things will happen in my life, from the college to my YouTube, and many more surprises were there in my life after my selection. So yeah, your life will be completely changed after selection. So study hard. Your timetable. मैंने अपने लास्ट 5 मंथ का टाइम टेबल का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था कि मैं फिजिक्स कब करता था, केमिस्ट्री कब करता था, यूट्यूब ये सब अपना कैसे मैनेज करता था. तो यू कैन वॉच दैट माई टाइम टेबल इन लास्ट 5 मंथ. बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक देर इज नो बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट. यू आर ओनली द इंस्टीट्यूट जो आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं. ऑल्दो एलन, आकाश, रेजोनेंस, जो भी XYZ कोचिंग है जिनका नाम बहुत फेमस है, इट्स ओके. कोचिंग से सिलेक्शन नहीं
कोचिंग से बस एक अच्छी डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी, एक अच्छी टेस्ट सीरीज और एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं. एक्सेप्ट दैट सिलेक्शन आपके बेस पे होता है. सो फॉर मी देयर इज नो बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट. ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर हार्ड वर्क. So the next question is, hi sir, only 1 month left for NEET 2022. What should I do, revision or give test daily? ये डिपेंड करता है आपका सिलेबस कितने अच्छे से हुआ है. मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आखिरी के 1 महीने में टेस्ट बहुत दे रहा था, नॉट रियलाइजिंग कि मेरा सिलेबस अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है और फिनिशिंग और रिविजन और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, प्रीवियस ईयर करना और भी बार फ्रीक्वेंसी ज़रूरत थी. तो अगर आपका ये सब अच्छे से हो गया है, यू आर इनफ कॉन्फिडेंट कि अब मैं टेस्ट दूंगा, मेरे अच्छे स्कोर आएंगे और अब मेरी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, तभी टेस्ट दो. अदरवाइज एज सुन एज पॉसिबल पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन गो विद द टेस्ट सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आई वांट ऑल केमिस्ट्री फिजिक्स नोट्स, वेयर डू आई गेट द नोट्स? ये 100-200 क्वेश्चन तो यही थे बस, तो मुझे ये एक लेना पड़ा. मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में डाल देता हूँ. इन केस अगर लिंक वर्क नहीं करती तो आप मेडिको ओम टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप और आपको मेरे सारे नोट्स जो हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरी एनसीईआरटी मार्किंग्स हैं या जो भी मैं एनालिसिस अपना डालता हूँ तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालता हूँ, तो यू कैन फ्री एक्सेस टू दैट. एंड क्वेश्चंस नाउ विच आर पॉपिंग आउट ओवर हियर, जिनको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसका डायरेक्टली आंसर है नो, क्योंकि half of the questions were this only, so I have to take all this. तो इसका आंसर है no. Who's your best friend at your college, भैया? The person whose Google account is this, Atman Soni. Few moments later. Next question is, भैया आप फुल सिलेबस के पहले जाने से पहले क्या पढ़ के जाते थे? This is a very frustrating question, I know. बिकॉज मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज रहता था कि पूरा फुल सिलेबस है, जब हर दिन एक फुल सिलेबस देना रहेगा तो एक दिन में हम क्या पढ़ लेंगे. यू कैन वॉच माई वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं कैसे 1 मंथ में 545 से 677 तक पहुँचा. एंड जब मैं हर दिन फुल सिलेबस देता था, पूरा अगस्त का मंथ मैंने हर दिन फुल सिलेबस दिया था, मेरा सितंबर में नीट था, तो मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया आपको कितना पढ़ना है. आपको पूरा सिलेबस एक दिन में नहीं पढ़ना, आपको क्वालिटी वाइज पढ़ना है. कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स का यूज़ किया, माइंड मैप्स का यूज़ किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने चैप्टर्स रिवाइज किए. सो यू कैन श्योरली सजेस्ट अ बुक फॉर PYQ फॉर नीट. तो मैं पर्सनली ऑफलाइन में जो यूज़ करता था वो अरिहंत की करता था, बिकॉज मुझे उसके सोल्यूशंस एंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते थे. आपके पास कोई और बुक है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर मी अरिहंत वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल देयर आंसर. नीट पोस्टपोन होगा क्या, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है. डोंट गो एंड वेस्ट योर टाइम इन ऑल दिस. लास्ट ईयर मेरे साथ भी यही होता था कि पोस्टपोन होगा कि नहीं, ये सब ट्विटर पे ट्रेंड करता था, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होता था. बट सीरियसली डोंट गो इन ऑल दिस. अगर आपको एक क्वालिटी वाले बच्चों में आना है फिल्टर आउट होके, तो ये सबसे ध्यान हटा के पढ़ो. इन केस पोस्टपोन होगा तो एक्स्ट्रा टाइम होगा आपके लिए. सो जस्ट डोंट सी ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, सो हियर्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. How did you study it consistently without any distraction? Because at present time the main distraction is only YouTube. I know it will depend on us, but then also diversion is a create spontaneously. How can we stand like a rigid concrete from anxiety diversion, that is distraction? Second thing, at last moment what are your sleeping and study schedule? ये मैं already अपने वीडियो में बता चुका हूँ. For the first question, I would like to say that make yourself mentally strong. If your dream, if your goal is very much clear, and if you have ultimate desire to achieve that goal or things, so YouTube won't be a distraction for you. For example, in my first attempt, YouTube was distraction for me because I think I was not so serious with my NEET. But while I was in my drop year, I was preparing second time, I was more serious, I was more focused towards NEET. So I really think कि उस साल में ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज वेरी मच मेंटली क्लियर कि मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना. अरे तो ये मेरे बाल ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू स्टडीड इन वल्लभ आश्रम? आई थिंक देयर इज सम स्टॉकर. Yeah, I have studied in Vallabh Ashram. It's a South Gujarat best. How to be just focus on your goal and leave every other thoughts. मैंने अभी इसका आंसर किया. आपके गोल्स और आपके ड्रीम्स उतने स्ट्रांग होने चाहिए कि ये बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी लाइफ के, आप उनको साइड कर सकें. देयर शुड बी वन आइडियल कॉलेज और वन आइडियल मार्क्स दैट शुड स्टक इन योर हेड, जो कॉन्स्टेंटली आपको हिट कर रहा है कि मुझे ये स्कोर या ये कॉलेज अचीव करनी है, तो आप ज़रूर अचीव कर लोगे. अदरवाइज आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रैक्शन ही है. Next question is, what did you do just the day before the exam? Like, did you keep on revising or didn't touch the books at all? Okay, that's a very nice question. See, I am the kind of student who will study a second before entering the exam hall. तो मैं तो कार में भी बैठ के पढ़ रहा था, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन पहले सिर्फ चिल आउट कर रहा था एंड ऑल दैट. होना चाहिए वो, जिन बच्चों को एंग्जाइटी होती है, डर बैठता है, या उनको लगता है कि आज वो पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं हो पाएगा और उनका जम्बल्ड हो जाएगा माइंड.
सो फॉर दैम इट्स एब्सोल्युटली कि आप ना पढ़ें, अपने माइंड को रिलैक्स करें. बट मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट विद माई प्रिपरेशन. आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है. तो मैं आखिरी दिन भी रिवाइज कर रहा था. इवन मैं नीट वाले दिन भी सुबह जल्दी उठ के भी घर पे भी पढ़ा था एंड कार में भी रिवाइज करते करते अपने सारे फॉर्मूलाज जा रहा था. एंड कार में रिवाइज की 2 फॉर्मूले से क्वेश्चन आया जो कि मेरे करेक्ट हो गए. सो आई फील वेरी गुड कि मैं रिवाइज एंड टाइम तक कर रहा था, जो आई थिंक डिपेंड पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज लाइफ बिकम्स गुड आफ्टर गेटिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज एंड प्लीज सजेस्ट कि अगर हम MBBS नहीं ले पा रहे तो अगर हम BMS में जाने की सोचे तो ये गलत होगा, प्लीज रिप्लाई कर देना. ओके, सो या मेडिकल कॉलेज में आने के बाद लाइफ बहुत चेंज हो गई. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, the way I see patients every day, the way I wear white coat every day, and just attending my all the classes, going to anatomy dissection room and also it feels so good as compared to my NEET and school life. And अगर आपका सेकेंड क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू. अगर आप BAMS को भी एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन अचीव सक्सेस, तो गो फॉर इट. मैं पर्सनली आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं MBBS कर सकता हूँ. सो आई डोंट वांट टू लेट माई पोटेंशियल गो लाइक दिस. मुझे अपने पोटेंशियल पे उतरना था. सो आई टुक अ ड्रॉप एंड आई वेंट विद MBBS. अगर आपको लाइफ में एक्सेप्ट है कि आप BMS में भी खुश रह सकते हो तो गो फॉर इट. इफ इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ वाइब दैट आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, अल्टीमेटली आपको MBBS ही करना है, सो या टेक अ ड्रॉप एंड डू MBBS. क्वेश्चन इज एनी फनी इंसिडेंट दैट हैपन इन med college every day? 100 of fun incident happen in my college every day. I can't just tell you, but yeah, it's a very fun life. Next question is Dada, what was your mock test score initially? Actually मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा बोलते हैं. So initially I used to wonder why people are calling me Dada, but it's okay. मेरे मॉक टेस्ट स्कोर मैंने अपने एक वीडियो में बताया. लास्ट 1 मंथ में मेरे स्कोर 545 से 677 तक कैसे पहुंचे. और इनिशियली मैं बताऊं, व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड, सो आई रिमेंबर आई गेव माय फर्स्ट मॉक टेस्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट नोइंग कि कैसे MCQ आते हैं, क्या आता है. इट वाज अ इंडिविजुअल चैप्टर टेस्ट. आई स्कोर्ड 198 आउट ऑफ 720. फिर अगले टेस्ट में थोड़ी मेहनत किया तो आई स्कोर्ड अराउंड 250. देन माई स्कोर वॉज स्टक टू 300 इन माई होल 11th स्टैंडर्ड. So yeah, this was my 200 or 300 score in my whole 11th standard, and slowly I was getting nearer to 400 by end of my 12th standard. So not so really good. Next question is, hello Om Bhaiya, how can we increase our speed of solving numerical problems? Can we clear NEET in first attempt with 700 plus marks? How to manage boards and NEETs? Please answer me. Okay, so you asked me 3 questions. First is, increasing the speed of solving numerical by practicing. जितना practice करोगे उतनी speed बढ़ेगी. So yeah, practice is the only way to increase the numerical speed. आप जितने questions practice कर सकते. Second is, can we clear NEET in first attempt? Of course, we have people who are scoring 700 marks, 720 marks in first attempt. So of course you can score 700 plus marks in first attempt, but that's really need a lots of patience, a good strategy, a good study material, a good test series to conquer your fear and etc. How to manage boards and NEET? Okay, I personally studied 1.5 months before my boards. And all time I was giving. NEET was MCQ oriented and boards was more subjective. NCERT कॉमन ही थी मेरे लिए, तो बस बोर्ड्स के वक्त मुझे पॉइंट वाइज चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ती थी टू राइट माई क्वेश्चन आंसर्स. एंड नीट के वक्त ऑब्वियसली सेम NCERT बार बार रीड कर रहा था, तो कंटेंट तो सेम ही था, तो एज सच आई डिडंट फेस एनी अ बिग प्रॉब्लम. What is your first reaction after seeing NEET papers physics portion? OMG, how can I just explain to you? That was terrible. Because 2020 का अगर आप सबने पेपर देखा हो, that was so easy, especially the physics portion. 1-2 लाइन से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी सॉल्व करने की. एंड द 2021 पेपर वॉज रियली काइंड ऑफ अ नेशनल एग्जाम पेपर, वेदर चाहे वो ऑप्शनल क्वेश्चन हो या नॉन ऑप्शनल क्वेश्चन हो. सो फॉर अ सेकेंड आई वॉज लिटरली लाइक इन ऑस्ट्रक हाउ दिस पेपर इज, बट देन आई काम माई माइंड, आई बिकेम मोर पेशेंट कि जो भी आएगा अच्छे से सॉल्व करके जाना है. मैं अभी आप लोग को भी कहूँगा, मे बी इस नीट में बायो टफ आ जाए जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, लेकिन उस समय भी आपको एंग्जाइटी या जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, क्योंकि ये पूरे साल की मेहनत सिर्फ ये 3 घंटे पे डिपेंड करता है. टू ट्राई टू मेक yourself more calm while giving the paper, and that can only be if you solve a lot of. Question is NTG to ask you, bhai, but thank you so much for supporting us, and bhai, I am NEET 2023 aspirant, keep supporting us. Thank you so much that you love my notes and all the study material that I am providing to you, and I'll be keen to help you all such aspirants. Next question is, why you not applied for AIMS? Okay, so that's a very interesting question. लोगों को लगता है जिनको एम्स मिल गई उन्हीं को बहुत अच्छी कॉलेज मिली है,
तो फॉर मी एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल एंड एम्स जोधपुर आर ओनली द गुड एम्स दैट आई रियली थिंक ऑफ। उसके अलावा जो एम्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी मेरी पर्सनल, जो इस समय मैं जिस कॉलेज में हूँ वो है। बिकॉज डिसाइडिंग कॉलेज इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स कि ये एम्स है कि अच्छी होगी। First of all, the college which I am living, it's a very old college. It is in the main city, and the number of patient count, the number of beds and the kind of facility that it has, बहुत सारे एम्स में नहीं है, स्पेशली द न्यू एम्स जो अभी खुले हैं। इन माई ओन स्टेट एम्स राजकोट इज देयर, बट स्टिल आई डिडंट ऑप्ट फॉर एम्स राजकोट बिकॉज कैंपस नहीं बना, पेशेंट काउंट उतने नहीं है, उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है जितनी अभी एक सेट गवर्नमेंट कॉलेज में है। सो या आई वेंट विद द कॉलेज ऑफ बड़ौदा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी एम्स। Dada, how much profit you got after solving PYQ of physics and chemistry in your NEET exam? Love from Assam. Okay. Lot of benefit, क्योंकि NEET में I really think 30 to 40% पेपर PYQ ही होता है। मैक्सिमम टाइम वैल्यू तक चेंज नहीं करते, एज इट इज़ रख देते हैं। सो या PYQ सॉल्व करना बहुत बार ज़रूरी है, और एक बार नहीं 2, 3, 4 बार करो ताकि आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक तरीके याद हो जाए कि ये क्वेश्चन है तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो PYQ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। How to deal with anxiety before exam? Please do tell दादा। Anxiety it's a very big issue। तभी 18 लाख में से सिर्फ 20-30 हज़ार लोग का सिलेक्शन हो पाता है। तो एंग्जाइटी कम तभी आपकी होगी अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्स देंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगी। इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग सो मेनी टाइम, तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आ जाएगा। मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, अगर मैं आपको स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू दूंगा तो क्या आप टाइम नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे, क्योंकि आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये 1000 टाइम्स अपने 9 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो, 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो अगर सेम अगर आप टेस्ट भी इतनी बार दे लोगे कि एंग्जाइटी नाम का शब्द ही आपके माइंड में नहीं रहेगा, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। इफ़ यू आर फीलिंग एंग्जाइटी, अ काइंड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग योर नीट एग्जाम, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, तभी आज आप इतने थोड़े लीस्ट कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। कैन यू से अ सिंपल मोटिवेशन सेंटेंस दैट यू बिलीव? Big follower and admire you only. Oh, means a lot. I really think that failure should be a motivation for you and success should be confident for you. That was a mantra of my life and I'll be following forever. Next question. Om, you really helped us a lot. Just share last day strategy with you of NEET with us. Thank you so much. ज़रूर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाना चाह रहा हूँ कि अगले लास्ट 1 महीने में आप एकदम रैपिड रिविजन कैसे कर सकते हैं। सो या आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो। Sir, I am in class 11th. I am following your all notes. Thank you so much for this note. You're welcome. If I get BMC one day as your junior treat, I'll sure buy a dinner for you. Help Anna. I am ready to help you without a dinner also. And yeah, I am ready to welcome you in my college. Hope I can see you as a junior. So yeah, done with the Q&A session. ये आप सबके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आंसर किए। जो क्वेश्चंस जो थोड़े ऐसे थे जो मैं आपको इंस्टा पे रिप्लाई कर सकता हूँ, आई विल बी रिप्लाइंग ओवर देयर ओनली. So thanks for watching my video. We'll meet in the next video. Bye bye.